कंडक्शन बताओ, बागीसा कंडक्शन बताओ। हर्ष सबको ऐड करो, इतना ही स्टूडेंट है अभी, सब जैसे ही आता है ऐड करते जाओ। सौम्या सिन्हा कंडक्शन बताओ। सौम्या बताओ, तुम कुछ नहीं, सुनो, नहीं बताओगे? कल ही ना पढ़ाए कंडक्शन कन्वेक्शन। हाँ, केवल तुम लोग ऐसे ही ऐड हो गए हो, केवल ऐड हो गए बस, ये मूर्ति बन के ऐड हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। बागीसा बताओ, उस दिन भी नहीं बताई थी, अभी बताओ। कंडक्शन बताओ। नहीं, वाह, तुम लोग सिर्फ ऑनलाइन क्लास करो, भी आराम से बैठे रहो। हाँ, केवल टीचर पढ़ाते रहे और तुम लोग आराम से बैठे रहो, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। आकाश तुम बताओ, कन्वेक्शन बताओ। मैम सलोनी। सलोनी, हाँ बोलो बोलो सलोनी, बोलो सलोनी। The mode of नीलेश का, transfer of हाँ, कन्वेक्शन इज मेथड ऑफ क्या? मेथड ऑफ क्या, बोलो। the mode of transfer of heat in solid in which heat moves from molecules to molecules without any movement of the molecules themselves is called conduction. हाँ, very good, very good. हाँ, conduction is the method for transfer of heat in solid molecules, and in this transfer, heat transfer from one molecules to another molecules. Sit down. Sit down. Ma'am, can I Mahi convection? कौन बोल रही है? हाँ, करो, आंसर करो। Convection. Convection is the mode of transfer of heat in liquid and gases in which molecules themselves move to carry heat. Very good. Next, Arushi. Arushi, can you answer it? आरुषि बताओ। अच्छा, चलो पढ़ो, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। जीके का होमवर्क बता दिया। जीके का होमवर्क लर्न अप टू पेज, अच्छा, लर्न अप टू पेज 16. It is homework for the GK. Learn up to page 16. 16 पेज क्या है? और ये साइंस में देखो, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज, उसके पहले क्या होगा? सी ब्रिज। ये पहले ब्रिज, सी ब्रिज को, सी ब्रिज पहले क्यों? अच्छा, ये बताने का तरीका है, हम सारे टीचर एट अ टाइम आके तुम लोग को सारे सब्जेक्ट एक ही पीरियड में एक साथ पढ़ोगे, तो एक खड़े हो और बताओ। हाँ, हाँ, C is firstly because it happened at the daytime. In the daytime, what happened ki land is heated up first. Since land heated by the conduction method, and through this method heating is takes
place in shorter duration of time in compared to convection method, and the water that is present in the sea heated in longer duration of time. So what happened at the daytime? Daytime air above the sea is cool and contract and having high pressure, and that whereas at the land is heated, it is very hot, and the air that is in contact with the land, it also get heated up and creating low pressure area. Low pressure area means there is less amount of air in that area, है ना? Less number of air molecules. Low pressure, less molecules of air present in particular area, that is low pressure. So all of you are knowing कि anything flow from higher to lower. So same way, like the flow of the heat take place from higher temperature to lower temperature. In same way, air flow from higher pressure to lower pressure. Which has lower pressure? C on air on C, है ना? Air on C have which pressure? High pressure. High pressure. Whereas air on the land, air on land have LP. LP मतलब क्या होता है? Low pressure. So it has high pressure. C have high pressure. So the air will flow from sea to land. And this flow of air from sea to land at the daytime, that is known as sea breeze. All of you have a study started. Sea breeze. Now land, yes, sea breeze, land breeze. And now land breeze. What happened कि daytime, all the time, water is heated up, and heating of water takes place convection method. Until the night, whole water get heated up, and that's why the air above the sea having low pressure area, है ना? When the air water is heated up, air get heat the sea water, and after getting the heat, what happened to air molecules? अरे उसको हीटिंग करते हैं तो क्या होता है? ये तुम लोग को खाना अगर नहीं दिया जाए तो तुम लोग एकदम स्टडी बैठे रहोगे, जैसे ही भरपेट भोजन मिल जाए तो मूवमेंट शुरू हो जाता है ना? तो हीट increases the kinetic energy of the molecules. Molecules के kinetic energy को increase कर देता है. So molecules of the air started moving faster and faster, है ना? एकदम तेजी से मूव करने लगता है, और मूव करके कहाँ जाता है? अप टू स्काई, है ना? When the heat of the air molecules increases, this increases the kinetic energy of the air molecules, and due to which the molecules escape out at the sky, creating low pressure area at the sea. सी का कैसा बन गया? लो प्रेशर एरिया. अब ये नाइट में यहाँ आ गया नाइट. नाइट में क्या हो गया? उल्टा हो गया. यहाँ कैसा हो गया? लो प्रेशर. और लैंड में लैंड धीरे धीरे 12 बजे से ठंडा होना शुरू करता है ना? देखो ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि 12 o'clock तक तुम लोग का क्या होगा कि हीटिंग होता है.
और 12 o'clock के बाद जो है लैंड जो है हीट अपना रिलीज करना शुरू कर देता है, इसीलिए उसके बाद जो है ना हॉटनेस ज्यादा फील करने लगता है आदमी। शाम तक बहुत कितना हीटिंग हो जाता है, क्योंकि लैंड जो है तब तक पूरे हीट को रिलीज कर रहा होता है। तो नाइट तक क्या हो गया, लैंड क्या हो गया, हीट उसके पास कम हो गया, तो कैसा हो गया, कोल्ड हो गया ना। नाइट में अपोजिट हो गया, वो नाइट में क्या हो गया, लैंड क्या हो गया, कूल। अब कूल हो गया तो एयर अबव द लैंड कूल, तो प्रेशर विल बी हाई, है ना, प्रेशर विल बी हाई प्रेशर, यहाँ लिख देते हैं ये हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। होता है भाई, ठंडा होने से एयर के काइनेटिक एनर्जी को क्या कम है, एयर का काइनेटिक एनर्जी कम है, तो कंट्रैक्शन है, एयर इज कंट्रैक्टेड, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर क्रिएटिंग हाई प्रेशर, है ना, एंड दैट्स व्हाई एयर started flowing from land to sea। क्या हुआ, सी के ऊपर हवा कहाँ चला गया, एयर कहाँ चला गया, हाई ये ऊपर स्काई में चला गया, है ना। और जहां तहां चला गया, जहां की वो एनर्जी, उसका जितना एनर्जी रहेगा, जहां तक वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वो वर्क कर सकता है, उतना दूर चला गया, है ना। और वहां एयर रहा नहीं रहा, तो लो प्रेशर एरिया रहा, तो वहां खाली रहेगा, जगह खाली तो नहीं रहेगा। हम लोग ना सेल्फिश हैं, अपने खा लिए तो दूसरे के लिए नहीं सोचे, लेकिन एयर क्या करता है, सोचता है कि यहाँ लो प्रेशर एरिया है, तो उसको क्या करे, फुलफिल करे, भर दे, उस प्रेशर को इक्वलाइज करे, है ना। तो फॉर इक्वलाइजिंग air above the land rush towards the sea, this rushing of air from land to sea is known as land breeze, है ना। सभी को समझ में आ रहा होगा कि लैंड ब्रीज क्या है, अपोजिट डे टाइम में। देखो ये तुम लोग को याद करने के लिए कभी कभी बच्चे जो है रट के लिखते हैं, और सी ब्रिज के बदले में लैंड ब्रिज, सही होता है, लेकिन वो सी के बदले में लैंड ब्रिज और लैंड ब्रिज के बदले में सी ब्रिज लिख देते हैं। तो नहीं, देखो यहाँ अगर ध्यान दो कि डे टाइम में होता क्या क्या, डे टाइम में सन प्रेजेंट है, लैंड है, लैंड का हीटिंग होता है थ्रू कंडक्शन मेथड, एंड इट टेक्स द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। तो लैंड हीट हो गया, तो उसके ऊपर का एयर भी क्या हो गया, हीट हो गया, तो क्या होगा, कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर, और सी जो है, सी में वाटर है, तो उसका हीटिंग धीरे 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 स्लो मेथड से होगा, है ना। तो एयर अबव द सी कूल, having high pressure, and that's why the air from the sea rushes towards the land, and this rushing of air towards the land is known as sea breeze। movement of air from the sea to land is known as sea breeze। तो ये हमेशा दो पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, कि लैंड जो है उसका हीटिंग कंडक्शन से होता है, वो शॉर्ट टाइम में होगा, है ना। वाटर है सी में, पूरा मेथड हीटिंग का क्या होगा, कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन जब प्रोसेस से हीटिंग होगा तो उसमें कैसा होगा, उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, लंबा समय चाहिए। देखिए ना, यहाँ अगर यहाँ फायरिंग भी करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, तो जो नियर बाई एयर मॉलिक्यूल्स है वही ना हीट लेगा, हीट लेकर के वो एस्केप करेगा, फिर जो कूलर है आएगा यहाँ, फिर काइनेटिक एनर्जी लेकर के और एस्केप कर जाएगा। तो ये कितना मॉलिक्यूल्स आएगा तब ना, तो ये प्रोसेस सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे ये हमारे क्लासरूम के मॉलिक्यूल्स को हीटिंग में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, तो लंबा समय लगेगा। तो यही याद रखना है कि आपका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कभी गलत नहीं होगा।
अभी भी किसी को डाउट है क्या? ऑनलाइन वाले तुम लोग को डाउट है क्या? नो मैम। नहीं ना? नो मैम। हमेशा कंडक्शन और कन्वेक्शन ये जरूर याद रखो। कंडक्शन में सॉलिड का हीटिंग है और कन्वेक्शन में लिक्विड हीटिंग है। हाँ, अच्छा देखो सुनो, एक बात सुनो। बकेट में वाटर है और ऊपर से सनलाइट आ रहा है, तो जो सबसे सुपरफिशियल, जो सबसे ऊपर सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल होगा वो हीट पहले लेगा और लेकर के क्या होगा, इवेपोरेशन, है ना। सुपरफिशियल जो है ना सरफेस, ये सरफेस फेनोमेनन है। इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है। जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है वो सन, हाँ, इवेपोरेट होगा, फिर नेक्स्ट एक्सपोज होगा किसमें, हीट लेने के लिए, और फिर नेक्स्ट भी हीट लेगा। तो देखोगे कि बरसात हुआ ना, बारिश हुई ना, तो गड्ढा में, खेत में कहीं भी वाटर डिपोजिट है, वो धीरे धीरे जाता कहाँ है, ऊपर। कैसे? कौन हीट देता है इवेपोरेशन? सन। सन। तुम लोग प्रकृति में देखते हो नहीं, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। रेडिएशन से सनलाइट आता है, सनलाइट आता है रेडिएशन से, लेकिन प्रोसेस ऑफ हीटिंग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये सरफेस फेनोमेनन है। इसीलिए ना देखो, रास्ते में देखोगे क्या, 2-3 दिन गड्ढा में पानी है, उसमें पैर डाल के आओगे, और फिर धीरे धीरे देखोगे क्या, ऐसा भी होता है, कुछ कुछ मैक्सिमम इवेपोरेट हुआ, और क्या हुआ, कुछ तो सिपिंग होता है ना। नहीं, अगर कंक्रीट का बना हुआ नहीं है, सीमेंट का बना हुआ है, तो कुछ सिपिंग भी होगा, नीचे सिप डाउन होगा ना, वाटर जाएगा, और मैक्सिमम का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो ये तो तुम देखते हो, केवल ध्यान देने की चीज है ना। देखते तो हो, रास्ते में पानी लगा था, 2-3 दिन पानी में गए आए, और धीरे धीरे वाटर जो है, पानी खत्म हो गया। ये क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट कर गया। क्यों इवेपोरेट कर गया? सनलाइट से। जो, हाँ, सनलाइट से। कौन हीटिंग करने जाएगा? रास्ते के पानी के लिए है तुम्हारे घर में गैस, हीट करोगे? सनलाइट से उतना। ऐसे ही ना होता है बेटा। देखो, ये जो सी वाटर से सॉल्ट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सी के किनारे मड का एक बाउंड्री बना देते हैं, और थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें बाउंड्री बना देते हैं, और उसमें सी वाटर को रख देते हैं और छोड़ देते हैं 10-20 डे, 25 डे। तो उसमें ये डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन है ना। ये डिपेंड करता है सीजन कौन सा है। और 20-25 डे में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, लेफ्टिंग द सॉल्ट इन द ये पिट में सॉल्ट रह जाता है। फिर उसको डिजोल्व करके, क्रिस्टलाइजेशन करके, और उसका ब्लेंडिंग करते हैं आयोडीन के साथ। तो मार्केट में अवेलेबल है आयोडाइज सॉल्ट। किनारे में, हाँ, डाल देता है। हाँ, सूख जाता है। सूख जाता मैंने इवेपोरेट कर जाता है ना। और उसके बाद जो है ना, वाटर इवेपोरेट कर गया, और सी वाटर में ज्यादा सॉल्ट है, तो सॉल्ट जो है बह गया। क्या क्या इवेपोरेट करता है? देखो, पेट्रोल मालूम है, बहुत सारा लिक्विड। रुको ना, पेट्रोल तो ऐसे ही, उसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर अभी तो 40 डिग्री होगा ना, 35 होगा, 40। हाँ, खुला एस्केप कर जाएगा। इवन कि देखो, अल्कोहल ना, होम्योपैथिक दवा में जो आता है, होम्योपैथिक दवा मेडिसिन, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? अल्कोहल। और उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर 50 डिग्री है। तो अगर ऐसे अपने आप एस्केप कर जाता है समर सीजन में, सब्लिमेशन इवेपोरेट कर जाता है। मरकरी में क्यों नहीं कंडक्शन होगा? अच्छा, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में भी तो होता है।
है ना, सेमी लिक्विड, लिक्विड, कंप्लीट लिक्विड कहाँ होता है? अब कन्वेक्शन एलिमेंट है और मेटल भी है, लेकिन एक्सेप्शन है कि मेटल जो है एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इतना दूर दूर नहीं ना उदित, उसका मॉलिक्यूल्स और देखे नहीं हो, थर्मोमीटर ब्रेक कर जाता है तो वो नहीं देखते हो मरकरी इकट्ठा हो जाता, लिक्विड तो है, उसका शेप तो चेंज होता है, लेकिन उसको जरा सा भी हटाओ तो वो साथ फिर हो जाता है। नहीं, उसमें कौन सा फोर्स ज्यादा है? कौन सा फोर्स? नहीं, देखो हम पढ़ाए हैं, देखो तुम लोग को हमेशा याद रखना होगा, जो बता देते हैं याद। कोहेशन फोर्स, एडेशन एंड कोहेशन, कोहेशन कोहेशन फोर्स फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सॉइल में नहीं पढ़े हो क्या? हैं? तो मैम कोहेशन पढ़े हैं। ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो कंडक्शन मेथड से हीटिंग होगा। हाँ, अब ये रिसर्च का बात है, तुम लोग भी रिसर्च करना कि ये मरकरी में हीटिंग कैसे होगा, कंडक्शन और ये कंडक्शन और कन्वेक्शन। हाँ, अब ये थर्ड मेथड ऑफ हीटिंग, दैट इज रेडिएशन। इन दिस मेथड नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, कोई सॉलिड लिक्विड गैस नहीं चाहिए इसके लिए, है ना। ये रेडिएशन के लिए सॉलिड लिक्विड और गैस नहीं चाहिए। हाँ, केवल ऐसा चाहिए सोर्स दैट कैन रेडिएट एनर्जी, है ना, जो ऐसा सोर्स चाहिए कि एनर्जी रेडिएट करे, रिलीज करे, एनर्जी निकाले, और दैट इज द सन दैट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, है ना। सन रेडिएट करता है ना, और सन देखो बहुत दूर है, सब बहुत दूर है, और बीच में हम लोग के अर्थ के एयर ब्लैंकेट्स के बाद कुछ है क्या? ओजोन के बाद क्या है? स्पेस में क्या है? स्पेस में क्या है? वैक्यूम है, और स्पेस में वैक्यूम है, और फिर भी सनलाइट आ रहा है, तो मतलब क्या है? ये सनलाइट जो आ रहा है वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, वैक्यूम है नथिंग इज देयर, है ना, जहाँ कुछ भी नहीं है उसको वैक्यूम कहते हैं, और फिर भी सनलाइट यहाँ तक आ रहा है, मतलब क्या? कि ये हीट वहां से पास हो रहा है, ये लाइट जो है वहां से पास हो रहा है, तो ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रेडिएशन। ड्रिंक कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और क्या टॉपिक बचा इसमें हीट चैप्टर में? देखो तो, हाँ देखो एक एक्टिविटी है, इसको ध्यान से दो, ध्यान दो। हाँ हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट एक्टिविटी जो है ये लड़के, for this activity 2 thermometer are taken, and one of the thermometer is covered with the white cloth, whereas other covered with the black cloth. This activity so that black body is good observer of heat. So when these 2 thermometer is placed near about a burning candle, you will see it is kept for 4 or 5 minutes. रिकॉर्डिंग में तुम्हारा फेस ऐसे ही दिखाए, उधर कर दे, दोबारा तिबारा पढ़ाया जा रहा है, फिर भी क्वेश्चन पूछेंगे तो फेस लेकर के ऐसे ही खड़े हो जाइएगा। तो ये जो है थर्मोमीटर जो है एक किससे? ब्लैक क्लॉथ से, और दूसरा जो है व्हाइट क्लॉथ से कवर करते हैं ऐसे। उसको डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में। हाँ चलिए, ये जो है ये बॉडी कैंडल,
गया। तो ये थर्मोमीटर है। काटा काटी। अच्छा बड़ा क्या मम्मी कह रहा बड़ा चौक ले ली। चौक बड़ा ले ले। हमको लगा तुम लोग का थर्मोमीटर बड़ा हो गया तो हमारा ये बड़ा वाला ये किससे है? ब्लैक। ये ब्लैक क्लॉथ से कवर्ड है और इधर एक और थर्मोमीटर ले लिया वाइट और इनको कवर करना है किससे? वाइट डिस्टेंस रूपी से, है ना? ऊपर डिस्टेंस और जितना भी सेंटीमीटर रखो दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और ये देखो और ये कवर कर दिया किससे? वाइट वाइट क्लॉथ से कवर कर दिया ब्लैक क्लॉथ पर ब्लैक क्लॉथ। अब देखो 5 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करते हैं, दोनों को देखते हैं तो मरकरी थ्रेड जो है किसमें ज्यादा इंक्रीज करेगा? बढ़ा देगा ब्लैक वाले में, है ना? एक्सटेंशन ऑफ मरकरी इज मोर in the thermometer which is covered with the black cloth in compared to white. This activity shows that black body is good absorber of heat, and this experiment is done by a scientist name is the Kirchhoff, and he derived the Kirchhoff law. है ना? एक किरचॉफ KICHOFF किरचॉफ उनका नाम था किरचॉफ और वो डिराइव किए किरचॉफ लॉ। तो उनका क्या था वो लॉ? क्या किरचॉफ क्या लॉ था? ब्लैक बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज वेल एज गुड रेडिएटर ऑफ हीट। ब्लैक बॉडी जो है गुड ऑब्जर्वर है हीट का और रेडिएटर भी हीट का गुड है। और वी पुट दिस theory in our practical use. What practical use? All of you have cooking utensil that is made up of copper is black. Very good answer. Black from the bottom side. वाइट ज्यादा रेडिएट रेडिएट कर देता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। रेडिएट और रिफ्लेक्ट दोनों अंतर है। रेडिएट करना मतलब इमिट करना, लाइट का इमिशन दैट इज रेडिएशन, और रिफ्लेक्ट करना मतलब जो आया उसको बाउंस बैक कर दिया। तो हाँ, जो आया उसको बाउंस कर दिया। तो व्हाइट कलर का है, लाइट फॉल हुआ ना, उसको क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, माने आया पे और जैसे वो ग्लास पे आया उसको बाउंस करके रिफ्लेक्ट हो गया दूसरे डायरेक्शन में। और रेडिएशन क्या हुआ? इमिट करना, जो हम लोग कल भी बताए थे ना कि एनर्जी इमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं। सन एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है। क्यों रेडिएट करता है मालूम है? लाइट क्यों इमिट करता है? क्या उसके पास कौन सा पावर है कि लाइट इमिट करता है? ये रेड क्या है ना कि उसके पास हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तो हाइड्रोजन गैस जो है 4 हाइड्रोजन गैस एटम मिल करके और 2 हीलियम मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। 4 हाइड्रोजन मिल करके एक साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज न्यूक्लियर हाइड्रोजन न्यूक्लियस में एक साथ मिल जाता है, फ्यूज कर जाता है और 2 हीलियम एटम को बनाता है। और वही एटम जो है हाइड्रोजन का मिल करके और हीलियम को बनाता है। और इस हीलियम को हीलियम एटम को बनाता है। 4 हाइड्रोजन मिल करके हीलियम को बनाता है। और ये जो हीलियम जो है, हीलियम बनता है और बाकी 2 हाइड्रोजन के अमाउंट जो है वो हीट एंड लाइट एनर्जी में रेडिएट हो जाता है, हम लोग के पास आ जाता है। तो इसी के वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन वो कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है फ्यूज कर रहा है
और फ्यूज करके हीलियम बना रहा है, और जो एक्स्ट्रा बन रहा है हीलियम जो खर्च हुआ और जो बाकी एक्स्ट्रा बचा वो क्या हो रहा है, वो सन ये लाइट और हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वही लाइट हम लोग के पास आ रहा है, वही सनलाइट आ रहा है। और हाँ, पूरा नहीं ना बना, 4 एटम हाइड्रोजन का मिला तो वो 4 का 4 यूज अप नहीं होता है। हाँ, हीलियम है ना, हीलियम को बनने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम का रिक्वायरमेंट होता है। तो बाकी हाँ, और बाकी जो है वो हीट और लाइट में कन्वर्ट जाता है, हम लोग के पास सन रेडिएशन में आता है। इसी के वजह से सन जो है ना, सन लाइट हम लोग को दे रहा है, लाइट रेडिएट कर रहा है। अब देखो ये जो है ना, इसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज करते हैं। किसका प्रैक्टिकल यूज? कि ये व्हाइट क्लॉथ्स आर वियर इन द समर, do not observe the mode here. If it is any cloth like the black colored cloth, it observes the mode heat. If we wear the black colored cloth in the summer season, what will happen? Black colored cloth will absorb more heat and it will make us more hotter, warm. है ना? And that's why we preferred white cloth in the summer season. It opposite to it in winter. In winter we use colorful dress, deep colored dress, because in winter we suffer from the coldness. And if we wear the dark color dress, black color dress, that will absorb the sun radiation more and give heat to our body. Now, और ये जो है ना, ये प्रणव तुम्हारे माइक से, यहाँ क्लास में तो चुप बैठते हो, अभी तुम अपने माइक से कहाँ रखो? देखो देखो करो। ऐसा लग रहा है। अरे भाई हटाओ ना। हाँ तो एकदम, अरे आवाज करना बिना मतलब का। चलो एक, अब देखो, वो अब मार्केट में जाना या घर में आज ढूंढना, सभी ऐसे बैठो, मार्केट में जाना या फिर घर में ढूंढना, क्या ढूंढोगे? कि कॉपर वाला जो यूटेंसिल होता है जिसमें हम लोग खाना कुक करते हैं, तो उसका बेस जो है ना ब्लैक कलर से पेंटेड रहता है। कितने लोग देखे हो? हाँ ठीक, वो इसलिए कि ब्लैक कलर इज गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, है ना। इट enables the utensil to absorb more amount of heat for cooking food, तो इसलिए ब्लैक कलर। और व्हाइट कलर का भी देखो, घर को कूल रखने के लिए व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, या पता है सबको कि समर आने के पहले घर को व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, इसलिए कि व्हाइट कलर विल रिफ्लेक्ट द सन रेडिएशन। हाँ, गर्मी नहीं लगे, ये हमारे इंडियन कल्चर। नहीं, पेंट नहीं करवाते बेटा, ये देखो, पहले तुम लोग को ना अभी फैन मिला हुआ है, घर में एसी मिला हुआ है, लेकिन पहले कल्चर था, चाहे तुम सुनो, पहले किसान का बेटा है या राजा का बेटा है, कुछ मतलब नहीं, सभी एक गुरुकुल में पढ़ते थे, और तभी तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उन लोग का देखोगे, जब भी गुरुकुल का फोटो सब देखोगे तो उन लोग का ये मुंडन हुआ रहेगा, सर पे बाल नहीं रहता, देखते हो, इसलिए कि हाँ, गर्मी से बचने के रहना तो चाहिए, कहाँ को रहता है लोग। हाँ, सब स्टाइल में रहना चाहता है। चलो, ये हीट चैप्टर तो खत्म। किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। चलो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ
एनर्जी। अच्छा नहीं लेकिन करना। हाँ एक एक करके लर्न, देखो होमवर्क लिख लो, लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 हिट। और ये कल से जो है मतलब कल ट्यूसडे से तुम्हारा वो उसका रिवीजन होगा। कौन सा? रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन। मंडे को स्कूल बंद है, जन्माष्टमी है इसलिए। हाँ संडे टेस्ट का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट है। हाँ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। हाँ अच्छा अब उसका डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हमको क्वेश्चन आंसर पूछने दो। ये इधर से अच्छा ठीक है, इधर इधर एक सेकंड हमेशा उधर से करते हैं। जीके में आज नहीं, चलो तुम बोलो। द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक। 37 30 हाँ 37 कितना? हाँ 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। चलो नेक्स्ट तुम बोलो। रुको तो तुम्हारे तरफ कैमरा कर दे रहे हैं, उधर जाएगा वो। हाँ चलो अभी 10 मिनट्स है, रुको 10 मिनट्स अभी है। ये हाँ द वाटर इज ब्लैंक कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ बैड, ठीक sit down. Land and sea breeze help to maintain the blank of